Assalamualaikum. Hello friends, welcome to Learning Center. Hope you all are fine. So in this video, in our today's lecture, we will talk about determinant, adjoint and inverse of 2 by 2 matrices. But before start a lecture, जैसे कि मैं आप लोगों को हमेशा कहती हूँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, then do it, press the bell icon, like and subscribe our channel for more latest videos. So first of all, we will learn how to find determinant of a 2 by 2 matrix. Suppose we have a square matrix A or matrix B, C, D, etc. with 4 elements A, B, C and D. So the determinant of matrix A is calculated as determinant of A is equal to AD minus BC. What we do? We just take the product of the elements from top left to bottom right, then subtract by the product of the elements from top right to bottom left. अब मैं आपको सिंपली वे में बताती हूँ ना. हमने क्या किया डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करने के लिए, जो हमारा मेन डायगोनल था, आपको पता है मेन डायगोनल क्या होता है, ए डी हमारा जो है वो मेन डायगोनल है एंड बी और सी जो हमारा है वो सेकेंड डायगोनल है. डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करने के लिए हम हमेशा मेन डायगोनल की एंट्रीज को मल्टीप्लाई करते हैं, मींस ए मल्टीप्लाई बाय डी, और सेकेंडरी डायगोनल की डिग्री एंट्रीज को मल्टीप्लाई करते हैं, मींस बी मल्टीप्लाई बाय सी. और जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो इनके बीच में हम रखते हैं नेगेटिव साइन, मींस सब्ट्रैक्ट करते हैं. सो इन दिस वे वी विल गेट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए डी माइनस बी सी. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. So here we have an example when 2 elements means 2 entries we have are positive and the other 2 entries are negative. Make sure to apply the basic rules when multiplying integers with each other. Remember this, that the product of numbers with the same sign will always be positive, but in the contrary, if the signs are different, the products will be negative. So let's find out the determinant of matrix C. जैसे हमने पहले किया बिल्कुल एज इट इज वैसे ही करेंगे, बट हाँ साइन का ख्याल रखना है. डिटर्मिनेंट ऑफ C we get is equal to 0, means it is a singular matrix. What is a singular matrix? A matrix whose determinant is 0 is said to be a singular matrix and has no inverse. As it is here, since determinant C is equal to 0, C inverse does not exist. Singular matrix के जो inverses होते हैं वो कभी exist नहीं करते. Let's take another example. Suppose we have a matrix A is equal to 4, 3, 2, 2. After taking the determinant, we have find determinant of A is equal to 2. This is a non-singular matrix because when determinant is equal to 0, then it is said to be a singular matrix. But when determinant is not equal to 0, then it is called non-singular matrix. What are non-singular matrix? Non-singular matrices are those whose determinants are not 0 and their inverses exist. Same as it is, since determinant of A is not equal to 0, that's why A inverse exists. But how to find inverse of 2 by 2 matrices? Let's find out, let's learn. Inverse सीखने से पहले हमें जो एक चीज़ सीखने की ज़रूरत है वो है adjoint of a 2 by 2 matrix, क्योंकि जब हम inverse फाइंड करते हैं तो हमें adjoint की भी ज़रूरत पड़ती है. सो यहाँ पे कोई भी आप मैट्रिक्स ले सकते हैं. मैंने यहाँ पे मैट्रिक्स M लिया है, मैट्रिक्स M इज इक्वल टू A B C D. अब हम इसका adjoint फाइंड करेंगे. तो what we do, we just interchange the 2 elements in the principal diagonal or in the main diagonal. हम सिर्फ 2 एलिमेंट्स की जगहें जो हैं वो चेंज कर देते हैं, इनको इंटरचेंज कर देते हैं. A की जगह D, D की जगह A, लाइक दिस, D B C A. What next? We change the signs of the remaining 2 elements. मीन्स जो सेकेंड डायगोनल के एलिमेंट्स हैं उनके हम साइन चेंज करते हैं. अगर पॉजिटिव तो नेगेटिव हो जाएंगे, अगर वो पहले से नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएंगे. Like this, adjoint of M is equal to D minus B minus C A. So इस तरह से जो है वो हम adjoint फाइंड कर सकते हैं किसी भी 2 by 2 मैट्रिक्स का.
अब हम देखेंगे कि इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते हैं. सो फॉर A इज इक्वल टू ABCD, इसका जब हमने डिटर्मिनेंट लिया, इट्स डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ABCD इज इक्वल टू AD माइनस BC, जो कि हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ A है. इफ A इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ A डज नॉट इक्वल टू 0, देन द इन्वर्स ऑफ A एग्जिस्ट, जो कि हमारी पहले भी बात हो चुकी है इस बारे में. तो फिर A इन्वर्स का फॉर्मूला कैसे होगा? A इन्वर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ A, मीन्स एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स. तभी मैंने आपको पहले एडजॉइंट सिखाया, क्योंकि यहाँ पे हमें एडजॉइंट चाहिए होता है उस मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करने के लिए. सो यहाँ पे अब अगर मेरा डिटर्मिनेंट ऑफ A AD माइनस BC था, तो मैं फॉर्मूला के हिसाब से अगर रखूँ 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A है, यानी 1 अपॉन AD माइनस BC मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ A. एडजॉइंट ऑफ A मेरा जो हमने पहले सीखा वो आया था D माइनस B माइनस C A. सो A इन्वर्स इस मैट्रिक्स का जो है वो ये होगा 1 अपॉन AD माइनस BC D माइनस B माइनस C A. और इसी फॉर्मूले की मदद से हम जो है वो किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं. अब इन्वर्स को मज़ीद क्लियर करने के लिए एक एग्जांपल और कर लेते हैं, ताकि थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन है वो भी दूर हो जाए आप लोगों की. सो सपोज वी हैव अ मैट्रिक्स B इज इक्वल टू 3 माइनस 2 1 माइनस 4. सबसे पहले तो इसका डिटर्मिनेंट ऑफ B, अच्छा इसका हमने क्या करना है, इसका हमने इन्वर्स फाइंड करना है. इन्वर्स फाइंड करने के लिए हमें डिटर्मिनेंट भी चाहिए होगा, एडजॉइंट भी चाहिए होगा, आप लोगों को पता है. तो फिर सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ B फाइंड किया तो हमें मिला -10, यानी कि डज नॉट इक्वल टू 0, मीन्स इसका इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है. So with the help of the formula B inverse is equal to 1 upon determinant of B multiply by adjoint of B, हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, जो कि हम कर रहे हैं अभी. So firstly अब हम जो है वो डिटरमिनेंट फाइंड हो गया है, फॉर्मूला भी हमें पता है क्या है, तो अब हम जो है जल्दी से उसका एडजॉइंट फाइंड कर लेते हैं. तो एडजॉइंट ऑफ B जो हमने फाइंड किया वो आया -4 2 -1 और 3. सो अब अगर हम इसको फॉर्मूले में रखें, यानी कि B इन्वर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ B मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ B. डिटर्मिनेंट हमारा था -10, तो 1 अपॉन -10. एडजॉइंट हमारा है -4 2 -1 3, यानी मल्टीप्लिकेशन में ऐसे करके रखा है. देन अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो फिर ये आएगा जो हमारा इन्वर्स जो निकल के आएगा B इन्वर्स इज इक्वल टू 0.4 माइनस 0.2 0.1 माइनस 0.3. आपकी मर्जी है, या तो आप इसको फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं या फिर इसको डेसिमल में भी रख सकते हैं. इस तरीके के साथ आप किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स इजीली फाइंड कर सकते हैं. सो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा, बिल्कुल क्लियर होगा सारे पॉइंट्स जो भी मैंने आज बताए. अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई देन लाइक एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर लेटेस्ट वीडियोस. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए. अल्लाह हाफिज़.